Om Shanti. A very good evening and a warm welcome to today's refreshing Sunday evening talk. So, a very warm welcome to all of you and a special hearty welcome to those who have come for the first time. Can I have a show of hands? Those of you are here for the first time. Thank you. So I hope you enjoy the campus and the beautiful place that Shanti Sarovar is and have the best of this session today. So today our topic is reorganizing the mind. And our today's speaker is a very esteemed and distinguished faculty at Shanti Sarovar. So let us welcome on stage Brother Ramakrishna. So Brother Ramakrishna, he has been practicing meditation for close to 30 years and he is a very eminent distinguished faculty and he takes care of the services of Brahma Kumaris under education wing. So youth wing, education wing, so these are the different service wings of Brahma Kumaris where we bring the knowledge and the tools of meditation to different sections of the society, different professionals. So welcome Brother Ramakrishna. Thank you for being with us. So he is a psychologist by profession and a meditator by passion, and he aims to enlighten and give the tools of meditation with a balance of what our rich heritage and legacy has brought us, the heritage of Bharat, as well as the modern tools, the psychology that brings in. So his sessions have a blend of both science and spirituality. So let us hear from Brother and insights how to reorganize our mind. Thank you, Lavneet Ben. I was liking when she was saying, have the courage to come into the front seats. Classroom is such a beautiful thing where everyone is asked to come into the front, but it doesn't happen in the real life sometimes. It is said that a man creates his or her world in the mental space. What you are today, whatever we are doing, wherever we are, knowingly or unknowingly, consciously or unconsciously or subconsciously, we have created that in our mental space sometime. Space is a very peculiar thing. These days, it has become a very common phrase that we say, I need some space. Everyone needs some space, When some things are becoming overwhelming, or when a person needs to sort things out within themselves, or to make some good decisions, or to analyze and process things. Maybe sometimes just to understand themselves or understand what's happening around them. People require space. And this space is a very beautiful thing. Sometimes when I compare two words, circumstances around those two words are the same, but the feeling is totally different, but the experience is totally different. For example, the word of solitude gives a very positive feeling, right? Gives calmness, gives an introverted feeling, stillness, solitude, temporarily disconnected with everything and connected with the self. And there is another word which is called as loneliness. But the feeling is not so positive. But the circumstances of these two words
actually the situations around these two words are somewhat similar. There is no one around in both these scenarios. But the feeling which it gives is totally different. Loneliness doesn't mean that you don't have anyone around. Sometimes, in spite of being with so many people, a person can experience loneliness. It is something related to the mind, isn't it? Sometimes, in spite of not having anyone around, the person internally is so full, having the feeling of abundance, connecting with the nature, happy with strangers even. What's happening around actually makes the person so happy. And in another case, in spite of having everything, in spite of having everyone, when the mind doesn't sync, there's a lot of disturbance, isn't it? So now, everything, the whole battle of existence is within. It is said that the external thing that we see is a reflection of what's happening inside. Sometimes we work on organizing everything, but we may miss organizing it inside. So, in spite of organizing everything externally, but again, it goes back to the same thing. Have you noticed sometimes when we do some not so intellectual works with a lot of involvement, that creates a very different space. Especially, maybe an example, if you're washing your car, cleaning your car, okay, and with a lot of involvement you're doing that, what happens? Observe it. Actually, you're not cleaning the car. Okay, after some time, mind becomes calm. Okay, even a small little dirt somewhere in the corner makes you to look at it and clean it. Actually, we are not doing an external cleaning, we are doing something internal. Or when you're dusting your home, actually we are not doing it externally, we are doing it internally. Internal space is a very, very important, purely private and powerfully impacting, beautiful space of solitude of everyone. The quality of our thoughts actually is the quality of our life, isn't it? Let's try to go inside and see how this internal space is as on today. Without making judgments like what is right, what is wrong, or this is not okay, this is okay. Just calmly, let's observe what's happening inside this world. When there is a movie which has been created, or a beautiful structure, or a space which is being created, the whole architectural beauty is first created inside the mind. When the education curriculum was created, later on it is followed for generations.
But when it is created, that's first created internally. Even when you have a wonderful kid coming into your life and you're so excited about that wonderful being coming into the family, there are so many things that you create in your mind, and that reflects into the parenting. And we unconsciously or consciously sometimes condition the child. Is it a process which evolves every day on the basis of the learnings and understandings, or is it a process which is pre-decided by our subconscious mind somewhere? Sometimes rigidity overtakes the flexibility. Sometimes interference overtakes the freedom. Sometimes judgments don't allow the mistakes to happen. But is it very good? How actually we learn? Why do you want so many things so perfectly? Even the smallest thing. What is more important? Is it the perfection or the joy of doing it? The happiness involved in exploring it. What's happening in the mental space? What are all those little materials inside it? What is it filled with? So many thoughts, right? What more? Can you suggest me what is filled inside this mind? If you imagine that there is a huge, beautiful space inside, and it has so many ingredients in it. The beauty of this is nothing which is inside this mental space is made up of matter. No molecules, no atoms, no subatomic particles. But everything that is inside this definitely matters. Isn't it? Very powerfully it matters. What are those things which are inside this which are not made up of matter but has a very powerful impact on each and everything that's happening in our life? What is there inside this mental space? Thoughts? What more? What more? Or all of you have just gone into the mental space and don't want to come out of it? I see that deepness of involvement in each and everyone's face that is reflecting there. So you're choosing to be silent. Sometimes silence is also a very powerful communicator. Very powerful communicator. Silence speaks thousand words. It also creates a lot of confusion. That's a separate thing. So what's there in this mental space? Thoughts, right? Feelings, emotions. What more? Consciousness, yes. What more? Experiences, yes. Mm-hmm. Memories, right. Memories. Perspectives, opinions, habits, emotions, yes. Beliefs, conditioning, yeah. What more? Learnings, wisdom,
Understanding? Huh? Desires? Knowledge. Knowledge. So many things. So many things. Another question is, so many contradictions within, and there is a confusion out of these two or many. Who am I? What am I? Am I this or am I that? How are these two things coming inside and conflicting with myself and creating a lot of confusion? Thank you. Is there a universe within? Isn't it? Yeah. But sometimes there is a diverse also. These diverse within may sometimes create diverse outside as well. When there is a universe within and there is a universe in the other, and both of that combine to become a universe, then there is no need for a multiverse or a diverse. The duality, inner contradictions, dilemmas are really so beautiful when we understand it properly and process it properly. Beliefs, some are rational, some are irrational. Any belief which has an irrationality in it creates dysfunctionality that has a very powerful impact. What are the different ingredients of life in any person? What are there? What are those elements of life? What do we have in life? Pardon? Health. Yes, very good. Person lives in imaginations, his dreams or her dreams, right? When we look at a person, what are all those little ingredients which has an impact on a person's life, which are contributing in our life? What are those things? Health, relationships, yes. Emotions, right? What is that? Finance, very important. हाँ जी. देखिए, are everyone comfortable with Hindi? Yeah? Is there anyone who can't understand Hindi? Okay, there are 3-4 people. So, are there anyone who can't understand English? Don't hesitate. English is, if you don't understand, that really doesn't matter. How many of you have difficulty in understanding in English? Okay, can I have the permission to combine both the languages, Hindi and English, and take it forward, as there is a request for some people? Right. I'll also speak in English so that those who can't understand Hindi can understand it, some of it. Or can anyone arrange a small translation at the back who can translate for in Telugu? Anyone who require it? Can you raise your hands, please? Yeah. Can anyone help? Can anyone volunteer to do that? Anyone from sisters and brothers from back? Yeah. Leela Mataji will help. If anyone is there, please reach out to her. She will translate. Fine. यहाँ एक आंतरिक दुनिया, आंतरिक स्पेस में कई लाइफ के कई एलिमेंट्स हैं. अगर आप देखें ये सारे एलिमेंट्स क्या क्या है, हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, जॉब है, फाइनेंसेस है. ओके, फाइनेंसेस में क्या क्या आते हैं? सेविंग्स भी है. सेविंग्स ही नहीं है, स्पेंडिंग भी है. कईयों की ज़िंदगी में सिर्फ स्पेंडिंग्स है, मेजॉरिटी. कईयों के जीवन में सिर्फ सेविंग्स है. दोनों भी
अति सर्वत्र वर्जिते, एनीथिंग एक्सट्रीम इज डेंजरस, यू नीड टू लीव इट। फाइनेंसेस भी है, और क्या क्या है जीवन में, रिलेशनशिप्स है, और हाँ ब्लेसिंग्स भी है, बहुत अच्छी बात है, सक्सेस, सेल्फ इमेज, ओके, परसीव्ड सेल्फ इमेज, गोल्स भी है जीवन में, और सेटिस्फैक्शन, और क्या है जीवन में, सोचिए, सभी सोचिए, ओके, इट्स नॉट जस्ट अ सेशन, ओके, लेट्स ऑल इन्वॉल्व इनटू समथिंग एल्स। रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, ड्यूटीज भी है, रिलेशन, राइट्स कोई नहीं बोल रहा है, ठीक है, हाँ जी, सरकमस्टांसेस, सिचुएशन, सरकमस्टांसेस, इश्यूज भी है, और चैलेंजेस, हैबिट्स, वेरी गुड, एक्सपेक्टेशंस, हमारे हैं या औरों के हैं वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों भी है, हाँ जी, और क्या है लाइफ में, रिलेशनशिप्स, लर्निंग्स, सक्सेस नहीं है, सक्सेस भी है ना, अच्छा, फेल्यूर्स है, वो आ नहीं रहा है वो हम चाह नहीं रहे हैं, ठीक है, और क्या है, सेल्फलेसनेस, लर्निंग्स, बियॉन्ड सेल्फ भी कुछ है, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, बिल्कुल, सोशल प्रेशर है, स्ट्रगल्स भी है। देखिए, नाउ इमेजिन ए मेंटल स्पेस, ओके, अ बिग सर्कल इन द माइंड, ओके, उस सर्कल में छोटे छोटे सर्कल्स, ये सारे सर्कल्स में ये सारा भर दीजिए, 1 2 3, रिलेशनशिप्स, वर्क, ओके, फाइनेंसेस, एवरीथिंग, यू आर फिलिंग अप एवरीथिंग। एक्चुअली अगर हम मेंटल स्पेस को ऑब्जर्व करते हैं, ओके, हमारे माइंड को ऑब्जर्व करते हैं, हो क्या रहा है अंदर, क्या ये सोच या थॉट्स जो चल रहे हैं वो ऑटोनॉमसली चल रहे हैं, हमारा इन्वॉल्वमेंट के बिना अपने आप चल रहे हैं, है अपना हाथ, मगर अपना हाथ अपने इन्वॉल्वमेंट के बिना ऐसा ऐसा हिल रहा है, वो ईज है या डिजीज है ना, थॉट्स आर ऑटोमेटिक, ओके, ओके, हाँ, अपने आप चल रहा है और बहुत तेजी से चल रहा है, हाँ, ये थॉट्स थोड़ा ग्रेविटी के साथ कनेक्टेड है, कभी कभी लगता है, क्यों ये सभा साधा नीचे ही आते रहते, ऊपर जाने का थॉट्स क्यों नहीं आते हैं, पहले ये कंप्लेन कम था, आजकल ये कंप्लेन बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, थॉट्स बहुत फास्ट प्रोसेस करने से भी फास्ट चल रहे हैं, वो थॉट्स को प्रोसेस करके आप डिसीजन लाने से पहले और 10 थॉट्स आ जा रहे हैं, माय गॉड, समटाइम्स नींद को भी पिटा दे रहा है ये थॉट्स, काम कर रहे हैं मगर बॉडी प्रेजेंट, माइंड इज एब्सेंट, ये चल रहा है, कौन चला रहा है, इसका डायनामिक्स को हमें समझना होगा। इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं, इंटेंस इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एग्रेशन इज एन इमोशन, वो इमोशन कोई स्टिमुलाई मिल जाता है तो इमीडिएटली ऑटोनॉमस चल रहा है, हमारे इन्वॉल्वमेंट के बिना रिएक्शंस आ रहे हैं, अब ये रिएक्शंस कंट्रोल कैसे करें, या वो इंपल्स को ही ओवरकम कैसे करें, ओके, स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी ये कहती है कि स्टिमुलाई, कोई भी ट्रिगर लाइफ में मिलता है,
उस समय इमीडिएटली जो आता है वो रिएक्शन है, और थोड़ा स्पेस के बाद जो आता है वो रिस्पॉन्स है। वो इम्पल्स में बहुत पावरफुल एनर्जी होता है, व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाता है और शब्दों में या कर्मों में या भावनाओं में बह जाके एक्शन में आ जाता है। हाँ, थोड़ा स्पेस ले, राइट, थोड़ा स्पेस अंदर से, लेट अस प्रोसेस इट। हर चीज का इमीडिएटली जवाब देने की जरूरत नहीं है। यू कैन चूज टू आंसर, यू कैन चूज टू रेस्पॉन्ड एट ए अप्रोप्रिएट टाइम। अगर इसके अंदर मेंटल स्पेस में कुछ और प्रोसेस चलता है तो ये ऑटोनॉमस रिएक्शन, ओके, प्रोसेस्ड रिस्पॉन्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। लाइफ के सारे इंग्रेडिएंट्स को हम ऑब्जर्व करते हैं। लाइफ में और क्या है, हॉबीज है, इंटरेस्ट है, ओके, सब गंभीर गंभीर बातें बता रहे हैं मगर कोई एंटरटेनमेंट की बात नहीं किया। मगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो सारा समय मोबाइल में ही चिपके रहते हैं, फिर एंटरटेनमेंट आया नहीं। वर्चुअल लाइफ भी है अपना, एंटरटेनमेंट भी है, हाँ, मगर ये चीज़ है जो भी हम कर रहे हैं वो क्या हमें एनरिच कर रहा है या डिप्लीट कर रहा है। एक हॉबी है, वो हॉबी एक हैबिट है, एक हैबिट हमें एनरिच करने वाला हैबिट है या हमें डिप्लीट करने वाला है। थॉट्स जो आ रहे हैं, हर थॉट हमें एक स्टेप आगे बढ़ा रहा है, एनरिच कर रहा है या हमें डिप्लीट कर रहा है। हर इमोशंस जब कहते हैं एंगर, हेट्रेड, जेलसी, ये सब याद आ रहे हैं, मगर इमोशंस जब कहते हैं खुशी, प्यार, शांति, ओके, पॉजिटिव फीलिंग, ये भी इमोशंस के साथ ही जुड़ा हुआ है ना, वो क्यों नहीं आ रहे हैं माइंड में। जब हम कहते हैं फीलिंग्स, इमीडिएटली किस प्रकार का फीलिंग्स माइंड में आ रहा है? हर्टफुल फीलिंग्स, हैप्पी फीलिंग है ना। किसी को देख के अच्छा, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको देख के बहुत खुशी हो रही है, किसी को देख के बहुत अच्छा लग रहा है, दैट्स ऑल्सो ए फीलिंग, राइट। हमें एक बार थोड़ा स्पेस लेके, साथ में नहीं, एकांत में, ओके, सभी हम साथ में बैठे हैं फिर भी एकांत में है। यहां पे एकांत में अपने अंदर झांक के देखे कि मेरे ये जो मेंटल इंग्रेडिएंट्स है ये सारे टॉक्सिक है, न्यूट्रल है, या एनरिचिंग है, या डिप्लीटिंग है। ऑब्जर्व करें। कभी कभी एक फेल्यूर इतना बड़ा क्यों हो जाता है, इतना बड़ा क्यों हो जाता है जो व्यक्ति को डिप्रेस कर देता है, या जीवन में कुछ है ही नहीं ऐसा महसूस कर देता है, या एक फेल्यूर या कोई एक सिचुएशन इतना बड़ा क्यों हो जाता है जो व्यक्ति जीने की इच्छा से भी दूर हो जाता है। मैंने कई बार ऑब्जर्व किया, हमारे इंटरवेंशंस में इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो मुझे एक चीज समझ में आई कि when a person makes something or anything as everything, कोई एक चीज को सर्वस्व बना लेता है अपना, तब क्या हो जाएगा? अगर वो एक चीज डिस्टर्ब हो जाती है तो कैसे लगता है? अगर वो चीज खो गया तब क्या हो जाएगा? ऐसा महसूस होगा कि क्योंकि माइंड में इंपॉर्टेंस दिया है कि दिस इज एवरीथिंग, जिसके कारण उनको ऐसा महसूस होता है कि जीवन का सब कुछ खो गया, मगर ऐसा है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट अपना गोल रखा है कुछ मार्क्स का, मगर फेल हो गया है।
एग्जामिनेशंस के रिजल्ट्स जब आते हैं तो हमें कई न्यूज़ सुनने में आता है, या किसी ने किसी व्यक्ति से बहुत दिल से प्यार किया मगर वो व्यक्ति ने रिजेक्ट किया, क्या हो गया? हार्ट ब्रेक हो गया, डिस्टर्ब हो गया। और कोई बिजनेस बहुत मेहनत से एस्टैब्लिश किया, अपना सर्वस्व उसमें डाला और पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गया, राइट? उसको ही सर्वस्व माना, उसी में ही सर्वस्व लगा। इट्स नॉट अबाउट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, इट इज अबाउट इन्वेस्टमेंट ऑफ माइंड, इट इज अबाउट इन्वेस्टमेंट ऑफ इमोशन, इट इज अबाउट एवरीथिंग यू आर इन्वेस्टिंग इनटू इट। तब क्या हो गया? जब वो वैक्यूम क्रिएट होता है ना, व्यक्ति को लगेगा सब कुछ वैक्यूम क्रिएट हो गया है, कुछ भी नहीं है, मगर है नहीं, ऐसा है नहीं। अगर एक बार ये मेंटल स्पेस को ऑब्जर्व कीजिए, इसमें कितने इंग्रेडिएंट्स हैं। कोई एक रिलेशनशिप खराब हुआ किसी भी व्यक्ति का, वो एक रिलेशनशिप खराब होने से उस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि अपना जीवन में सब कुछ खो लिया, मगर एक्चुअली है नहीं। आपके लाइफ में रिलेशनशिप्स, अगर आप ये सारा इंग्रेडिएंट्स 1-2%, 3%, 5% ऐसे ऐसे जब सबका कंट्रीब्यूशन होगा, तब फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप का एरिया में कितना कंट्रीब्यूशन है? 5% इंग्रेडिएंट है। अरे ये 5% में भी कितने सारे रिलेशनशिप्स है ना? यू हैव सो मेनी अदर रिलेशनशिप्स, उसमें एक रिलेशनशिप खराब हुआ है, माना आपका सम टोटल इफेक्ट कितना है? 1% है ना? बाकी का सब ठीक है ना? एंटरटेनमेंट ठीक है, हॉबीज ठीक है, आपका इंटरेस्ट ठीक है, बाकी के रिलेशनशिप्स ठीक है, जॉब ठीक है, फाइनेंसेस ठीक है, आपका हैबिट्स ठीक है, आपका एक्सरसाइजेस ठीक है। मगर इफ यू मेक समथिंग, दैट कैन बी एनीथिंग, इफ यू मेक समथिंग एज एवरीथिंग, परसेप्शन है। इफ यू परसीव दैट समथिंग इज एवरीथिंग, वो एक खराब होने से सब कुछ खराब दिखेगा, जिसके कारण व्यक्ति कोलैप्स हो जाता है और माइंड की जो प्रोसेसिंग है वो बहुत एम्पलीफाई हो जाता है। अगर हम बैठे अपने आप से, एक अच्छा पेपर ले, ड्रॉ करें अपने मेंटल स्पेस को, मेरे इस मेंटल स्पेस में क्या क्या है, व्हाट आर ऑल दोज थिंग्स विच आर देयर इन माई मेंटल। हर एक का अलग अलग होता है। हाँ, उससे पहले एक बार ऑब्जर्व करें कि ये मेंटल स्पेस में थॉट्स चल कैसे रहे हैं। एक अच्छे प्रोसेस में चल रहे हैं या जैम होके इधर का थॉट वहाँ का थॉट यहाँ, इसको यहाँ मिक्स कर दो, उसको वहाँ मिक्स कर दो, पास्ट में भी चले जा रहा है, फ्यूचर में भी चला रहा है। कोई व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं कोई एक इश्यू को सॉल्व करने के लिए, उस इश्यू को सॉल्व करने के बजाय वो पास्ट के सारे इश्यूज ले आ रहा है और जजमेंट्स पास कर रहा है, यू आर दिस, यू आर दैट, उसमें वहाँ भी ऐसा, यहाँ भी ऐसा, वो सारा कोर्ट में डिस्कशन। हमें कोर्ट में जीतना है या जीवन में स्मूथली चलना है? व्हाट इज द लक्ष्य, क्या है? थॉट्स, जैम्ड थॉट्स चल रहे हैं। सुत भी जब मूंझ जाता है, सारा रस्सी जब मूंझ जाता है, सुत भी जब मूंझ जाता है, यू कैन, it becomes very difficult to separate them. You have to start from somewhere. कहीं से जोड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको बांधना पड़ेगा, पीसेस में मिलेगा आपको, फिर उसको सारा बांधना पड़ेगा। लाइफ को भी ये मेंटल स्पेस में जो थॉट्स चल रहे हैं, मे बी हमारा मॉडर्न लाइफ बहुत रैपिड चेंजेस जो चल रहे हैं, हमारे जीवन से जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। ओके, कुछ ऑर्डर की खा रहे हैं, मगर नेक्स्ट क्या ऑर्डर करना है वो चल रहा है।
ये जो हाथ में आया है उसको खाने में वो जो स्वाद लेना चाहिए उसके बजाय व्हाट नेक्स्ट। ये जो जाम जो हो रहा है थॉट्स का, क्या हम इसको कोई प्रोसेस से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? मेस्टअप जो हो रहा है, मतलब एक टीनेजर्स के कई बार ये दिखने में आता है, टीनेजर को हेल्प करने के लिए मदर या फादर जाके उनका सारा रूम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा कंप्लेन करते हैं। क्या कंप्लेन करते हैं? हाँ, पूरा रूम खराब कर दिया। मैंने मेरे सब चीजों को व्यवस्थित रखा, जो मुझे मिले अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है। शायद ये कंप्लेन हमारा माइंड में भी एक टीनेजर है, वो कंप्लेन ये करते रहती है। हाँ, थोड़ा क्या हम ये मिक्सचैरिटी कैसे चल रहा है, पास्ट प्रेजेंट में मिक्स हो रहा है, फ्यूचर का फियर्स प्रेजेंट में मिक्स हो रहा है, कोई और रिलेशनशिप्स ये रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो रही है। ओके, जिस चीज को उस रीति से देख नहीं पाना और सब हर चीज में हर चीज मिक्स हो जाना, क्या उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? वर्क फ्रॉम होम होके और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। पहले कम से कम एक डिस्टेंस या डिस्टिंक्शन था वर्क और लाइफ की, अभी वर्क लाइफ हो गया है, लाइफ वर्क हो गया है। अब लाइफ जी रहे हैं या वर्क जी रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। एंड स्पेशली वी इंडियंस हैव ए वेरी बिग प्रॉब्लम, मे बी एशियंस समवेयर। कुछ चीज़ों में यूरोपियंस बेटर है, एटलीस्ट इन दिस। आप सैटरडे संडे आप कॉल करो किसी को, वॉइस मैसेज आएगा आपको, आप उनके वॉइस बॉक्स में जाएंगे, उनके टॉक बॉक्स में नहीं जा पाएंगे। अगर आप गलती से इंटरेक्शन भी हो गया तो कहेगा आप मेल कर दीजिए, मैं मंडे रेस्पॉन्ड करूंगा। आप इंडियन को कॉल कर दीजिए, 24/7 कॉल सेंटर अवेलेबल है, एनी टाइम इट्स ए प्रायोरिटी, इट्स एन इमरजेंसी सर्विस। कौन दिया है रेस्पॉन्सिबिलिटी? कंपनीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। आपका अगर कोई यूरोपियन कोलीग है आपको संडे या सैटरडे कॉल कर रहा है, पहले सॉरी कह के कॉल करेगा, आई एम वेरी सॉरी टू डिस्टर्ब यू एट दिस टाइम बोल के बहुत मॉडेस्टली पोलाइटली बोलेगा। अगर इंडियन कॉल करेगा तो वे क्या बोलेगा? कल्चर है ना, कल्चर है, क्योंकि हमने सीखा कर्म ही सर्वस्व है, और कर्म के लिए हम कर्म योगी है, कर्म में ही हमारा योग चल रहा है, बैलेंस बिगड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये क्यों होता है? आई हैव ऑब्जर्व्ड वन पैटर्न। ये क्यों होता है कि शायद हम गिल्टी है। क्यों गिल्टी है? एक हमारा गिल्ट को कॉम्पनसेट करते हैं। कैसा? हम वर्क के टाइम पर पर्सनल काम बहुत कर लेते हैं, कॉल्स अटेंड कर लेते हैं, वहाँ अटेंड नहीं होता है, कई लोग अटेंड नहीं करते, कॉल्स अटेंड कर लेते हैं। ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम जैसा है, वर्क फ्रॉम ऑफिस, होम फ्रॉम ऑफिस भी होता है। शायद उस प्रकार की जो स्लिपेज जो होता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं हम रिस्पॉन्सिबल फील ज़्यादा करते हैं ना, वी आर मोर सेंसिटिव। वो सेंसिटिविटी को हम कॉम्पनसेट करना शुरू करते हैं। शायद इस प्रकार से क्या हम वर्क को वर्क के रूप में, पर्सनल लाइफ को पर्सनल लाइफ के रूप में, फैमिली लाइफ को फैमिली लाइफ के रूप में
कि हमारे लर्निंग टाइम पर लर्निंग में, स्किल डेवलपमेंट पे स्किल डेवलपमेंट पर, हमारे चैलेंजेस सिचुएशंस कई कई है हमारे पास, हमारे स्पेस में बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको हमें अटेंड करना है, मगर हर बार अटेंड करने की शायद ज़रूरत नहीं है। क्या हम उसको अप्रोप्रिएट टाइम एंड स्पेस में अटेंड करने के लिए ये सारा एक जगह हम रख ले? वर्क के सारे इश्यूज एक बॉक्स में रख ले, फैमिली के कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उन सबको एक अप्रोप्रिएट टाइम दे, पर्सनल इंटरेस्ट है, हमारे हॉबीज़ है, मे बी ट्रैवलिंग है, मे बी एडवेंचर की ज़रूरत है किसी को एडिशनली, किसी को सॉलिट्यूड की, किसी को मेडिटेशन की, किसी को डीप थिंकिंग की, हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स है। उन सब चीज़ों को हम अगर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या प्रॉपर बॉक्सेस में रख सकते हैं और हर चीज़ को हर बार ओपन ना करें, ये हो सकता है, ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। चलिए अभी ये कैन आई हैव ए व्हाइट बोर्ड प्लीज? अभी ये मेंटल स्पेस, एक राउंड बिग मेंटल स्पेस, इसमें छोटे 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 ये सारे बॉक्सेस है या सर्कल्स है। इन सब के बीच में लेट्स विजुअलाइज अनदर स्पेस एंड लेट्स कॉल इट एज सेंट्रल स्पेस। मेंटल स्पेस में सेंट्रल स्पेस। हमें एक लक्ष्य होना चाहिए कि इस सेंट्रल स्पेस को फ्री रखें। ओके, इस सेंट्रल स्पेस को हम फ्री रखते हैं और इंडिविजुअली जब हम वर्क करेंगे तो इस मेंटल स्पेस में हम कई ऐसे इंग्रेडिएंट्स हम देखते हैं जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, उसे निकालना होगा, मगर निकालते नहीं है। हमारे घर में भी ऐसे कुछ चीजें होते हैं जो हम सालों साल यूज नहीं करते हैं, मगर क्या करते हैं, संभाल के रखते हैं, मिलता भी नहीं, जरूरत चीजें। ये बात सही। वेल सेड। सो ये जो अननेसेसरी थिंग्स भी हमारे मेंटल स्पेस में आ गया है, हर एक का अपना। और ये मेंटल स्पेस के बाहर कुछ और चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, मगर ये अभी अपने मेंटल स्पेस में आया नहीं है। लाइक हमारे न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस। तो महीने हो गए ना, 1.5 month। अब कहाँ है वो? मेंटल स्पेस के अंदर आए हैं या अभी भी बाहर है? आगे। हाँ, इसका अर्थ ये है कि हमें कुछ चीजों को अंदर लाना भी आता है, कुछ चीजों को बाहर बेचना भी आता है। एक होता है मेंटल स्पेस, अपने हिसाब से वो बनते जाना है। लाइफ इज फ्लोइंग, कई चीजें आ रहे हैं, कई चीजें जा रहे हैं, कई इमोशंस है 10 साल के, 15 साल के। हमने एक डिसीजन लिया और कह भी दिया, आपने ये जो कहा है ये मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। रखिए, नुकसान किसका है? जिसने कहा 10 साल के बाद आप उसको जाके आप 10 साल पहले ये बात, मैं मुझे बिल्कुल याद नहीं है। और ये व्यक्ति ने संभाल के रख लिया मेंटल स्पेस में। अब देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ आवर माइंड वर्क्स। वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग ए सॉफ्टवेयर। इसका प्रोग्रामिंग कौन कर रहा है? एक सिचुएशन है जहां पे एक व्यक्ति को एक फेल्यूर मिला, फेल्यूर के साथ साथ सब लोगों ने इंसल्ट किया बहुत बुरी तरह से, और बहुत हर्ट होता है ना जब कोई इंसल्ट करता है। एक व्यक्ति उसी इंसल्ट को कन्वर्ट किया। एक व्यक्ति वो इंसल्ट को इतना ले लिया कि वो डिप्रेस्ड हो गया,
डिप्रेस होने के कारण दूसरा कोई चीज़ जीवन में चल नहीं पा रही है, हर एक के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ रहा है। मूड, फीलिंग्स, इमोशंस, बिहेवियर, डिसीशंस, स्लीप और फूड, डाइट में भी इफेक्ट पड़ रहा है। और जो भी कर रहा है उसका एरर्स हो रहे हैं क्योंकि मेंटल प्रीऑक्यूपेशन है। अब यही व्यक्ति दूसरा व्यक्ति है, इसी इंसिडेंट में दूसरा व्यक्ति ने सोचा अब ओके, आपने कहा दिस इज नॉट माई टाइम, आई विल डू वॉट इज रिक्वायर्ड, फिर अप्रोप्रिएट समय पर उसका जवाब दूंगा। कन्वर्ट किया उसको, एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। जमशेदजी जब ब्रिटिशर्स भारत में थे, जमशेदजी टाटा जी, उस समय स्टील के कुछ चल रहा था डिस्कशन, कोई विदेशी ने मजाक कर दिया और कहा इंडिया एंड स्टील बोल के हंसा सरकाज़म से। वो अंदर चला गया उनको बहुत स्ट्रांगली अंदर चला गया। फिर जमशेदपुर में टाटा स्टील एस्टैब्लिश हो गई। क्या हुआ? एनर्जी में कन्वर्ट किया ना। किसी और व्यक्ति ने हेट्रेड में कन्वर्ट किया। आपने ऐसा कहा तो मैं दिखाऊंगा आपको, हेट्रेड में कन्वर्ट किया। किसी व्यक्ति इग्नोर करके चला गया। अब विषय ये है कि हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड क्यों हुए। Why did they respond differently? Same situation, same circumstances. Everyone responded differently. क्यों? Why? और थोड़ा डीप में जाइए। पास्ट एक्सपीरियंसेस जिसके बहुत बुरे हैं वो भी आगे बढ़ रहा है। जिसके पास्ट एक्सपीरियंसेस बुरे नहीं, पहली बार हो रहा है, वो भी गिर रहा है। कुछ तो बैकग्राउंड है ना। हाँ, मानो कैसे परसीव कर रहे हैं, मानो हर व्यक्ति अलग अलग परसीव कैसे कर रहा है। मैन्युफैक्चर्ड कॉर्डलेस माइक देना भैया, कॉर्डलेस माइक देना। मैन्युफैक्चर्ड इफेक्ट, अब मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ उसका। हाँ, कुछ बैकग्राउंड है ना। इन सब चीज़ों के बिना हर व्यक्ति अलग तरीके से परसीव करने के लिए कुछ बैकग्राउंड है, कुछ सॉफ्टवेयर है। फ्रंट एंड के सॉफ्टवेयर के अलावा कुछ बैक एंड सॉफ्टवेयर भी है। हाँ, चाइल्डहुड से, हाँ, अपब्रिंगिंग। अब्दुल कलाम जी को तो वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस मिले चाइल्डहुड में। अच्छा सर्कमस्टेंसेस तो नहीं मिले उनको। हाँ ठीक है। हाँ, मैच्योरिटी। हाँ, वो कौन डिसाइड कर रहा है, कैसे डिसाइड कर रहा है? देखिए, एक बैक एंड सॉफ्टवेयर है हर एक का। ये सॉफ्टवेयर हम क्रिएट करते हैं, कोई और अपना लिए प्रोग्राम करके जेनेटिकली नहीं भेजा है। एक सरप्राइजिंग एलिमेंट ये है कि हमारा जेनेटिक्स प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन व्हाट वी आर। जेनेटिक्स का इन्फ्लुएंस अराउंड 80 to 90% है। मगर हमारे जो एनवायरनमेंट है, जिसमें लर्निंग है, एक्सपोजर है, ये सारा मिलके हमारा एनवायरनमेंट है, दैट इज कंट्रीब्यूटिंग ओनली 10 to 20%, कभी उससे भी कम। मगर इन दोनों में पावरफुल कौन सा है? 80% जेनेटिक्स, 90% जेनेटिक्स है। भल एनवायरनमेंट 10% है,
मगर ये 10% इज डिसाइडिंग आउट ऑफ दैट 80 to 90% कौन सी चीज हमारे जीवन में आना चाहिए. जेनेटिक्स में भी कौन सा चीज हमारे लाइफ में आना चाहिए वो कौन डिसाइड कर रहा है? आपका एनवायरनमेंट. अब एनवायरनमेंट कौन क्रिएट करता है? वी क्रिएट अवर एनवायरनमेंट. बहुत आश्चर्य की बात है. लुक्स टू बी डिफिकल्ट टू बिलीव, बट एनवायरनमेंट इज नॉट समथिंग विच इज अराउंड यू. Environment is that out of what is around you, what are you taking it inside? अच्छे लोगों के एनवायरनमेंट में रह के भी हर एक के अंदर की बुराई दिख रहा है तो बुराई जाएगा. बहुत बुरे व्यक्तियों के बीच में रह के भी कोई ना कोई अच्छाई देख पा रहा है तो वो अच्छाई अंदर जाएगी. What are we choosing to bring inside? ये हमारा सॉफ्टवेयर है. छोटे 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 प्रोग्रामिंग चलते जा रहा है. हम कुछ चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है. हम कुछ एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो कितना भी बड़ा हो वो हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा. ये चॉइस हमें है. कभी कभी हम कह देते कि आई हैव नो चॉइस. नहीं, यू हैव ए चॉइस. हमारे पास शांति सरोवर में कुछ बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज आ जाते हैं. आके ग्लासेस है ना यहाँ फंस जाते हैं. सुबह जब हम जाते हैं तो वो विंडोज को हिट करते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं, कई मर भी जाते हैं. मगर मैंने ये देखा हर बार कि जब डोर्स विंडोज क्लोज्ड है उसके बगल में ही और एक विंडो है जो ओपन है. मगर ये वहां नहीं जा रहा है, यहां पर ही हिट कर रहा है. कंटिन्यूअसली हिट कर रहा है. हम क्या कहते हैं? मैं तो ट्राई कर रहा हूं ना, ट्राई कर रहा हूं. उस समय क्या करना चाहिए? स्पेस लेना चाहिए. ट्राई भी स्टॉप करना चाहिए. हम क्या करते हैं? हमारे भाई बहनें वो बर्ड्स को, बटरफ्लाइज को होल्ड करते हैं, थोड़ा पीछे लेके जाते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं. जैसे ही हम छोड़ देते हैं अक्सर करके ये बर्ड्स जहां विंडो ओपन है वहां से चले जाते हैं. जीवन में भी क्या करना चाहिए? सिचुएशन को बार बार हिट नहीं करना है. इफ यू आर ट्राइंग द सेम वे विच यू हैव ट्राइड अर्लियर, यू विल बी गेटिंग द सेम रिजल्ट विच यू हैव गॉट अर्लियर. आपको वो रिजल्ट पसंद नहीं, कुछ और रिजल्ट चाहिए तो थोड़ा स्पेस लेना चाहिए. थोड़ा दूर जाके लाइफ को एक बार होलिस्टिक व्यू से देखना है. एक नजरिया जो बन गई है लाइफ की, उस नजरिया को चैलेंज करना है. चैलेंज करके एक बार पूरी तरह से राउंड अबाउट देखना है. उसकी इन्फ्लुएंस, हमारा एफर्ट की, पर्सपेक्टिव की, बिलीफ की इन्फ्लुएंस से थोड़ा हट के एक होलिस्टिक व्यू में लाइफ को देखते हैं तो कई विंडोज हमको दिखेंगे. डोर्स क्लोज्ड है तो विंडोज मिलेंगे, विंडोज क्लोज्ड है तो वेंटिलेटर्स मिलेंगे. हम ये वेंटिलेटर्स से भी अपने रास्ता बनाएंगे तो हॉस्पिटल की वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी. कई बार कई वर्कशॉप्स में कई बार पूछते हैं, ये जो लाइफ की जो अप्स एंड डाउन्स है ना, इतना फ्रस्ट्रेटिंग है, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता है जहां पे ये सारे अप्स एंड डाउन्स खत्म हो जाए और बहुत स्मूथली स्ट्रेट लाइन में जीवन चले? है एक फॉर्मूला है मेरे पास. वो पर्सपेक्टिव अगर आप देखते हैं तो यू कैन कम आउट ऑफ ऑल दिस फ्लक्चुएशन. बहुत स्मूथ स्ट्रेट लाइन चलेगी. हाँ, मगर मैं सिर्फ उन्हीं को बताऊंगा जो वो चाहते हैं. 1 मिनट में हो जाएगा, 1 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. वो पर्सपेक्टिव देते ही एवरीथिंग विल बी स्ट्रेट. सारे फ्लक्चुएशंस खत्म. जिन जिनको चाहिए वो हाथ उठाइए प्लीज, जेन्युइनली हाथ उठाइए. चांस है. अच्छा,
जिनको नहीं चाहिए वो हाथ उठाइए थोड़े। अच्छा, जो हाथ नहीं उठाए वो जरा हाथ उठाइए। क्यों? ठीक है, हाँ जी। फार्मूला बता दो, ठीक है, मैं फार्मूला बता दो। चलिए सब उठिए मेरे साथ, चलिए। एक मिनट एक मिनट, एक मन से उठिए। हम सब चलते हैं साथ में, तैयार है? रेडी? हम सब आईसीयू में जाएंगे। आईसीयू के एनवायरनमेंट को विजुअलाइज कीजिए। आईसीयू के एनवायरनमेंट में कई प्रकार के लोग हैं। वहां पर एक मॉनिटर है हर बेड के बगल में। उस मॉनिटर में कुछ बीप बीप साउंड्स आ रहे हैं। उस मॉनिटर में वेव्स है। हाँ, एक तो मॉनिटर है, कोई नॉइज नहीं है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन चाहिए? स्ट्रेट लाइन अच्छा भी नहीं रहेगा। लाइफ में ये अप्स एंड डाउन्स एक पार्ट ऑफ लाइफ है, मगर इसमें हमें सीखने की एक बात है। जब लाइफ ऊपर जा रहा है, सिचुएशंस ऊपर जा रहे हैं, उसके साथ साथ मेंटल स्पेस में हमारा मन भी ऊपर जा रहा है। ओके? फिर थोड़ा समय के बाद लाइफ का जो ग्राफ है ऊपर से नीचे आ रहा है। ओके? जब लाइफ नीचे आ रहा है तो हम भी उसके साथ एडजस्ट होके नीचे आ रहे हैं तो चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ले ऑफ्स हो रहे हैं, जॉब बहुत अच्छा था, अब ले ऑफ हो गया, जॉब के हिसाब से ईएमआईज, जॉब के हिसाब से अपने एक्सपेंडिचर्स, लाइफस्टाइल, हर चीज सेट कर लिया है। अब ये नीचे आ रहा है, हम वहां ही ठहरना चाहते हैं तो क्या होगा? प्रॉब्लम्स अप्स एंड डाउन से नहीं है, अप्स के साथ अलाइन होके डाउन्स के साथ भी अलाइन हो पाना, वहां है ब्यूटी। अब ये ऊपर गया है, लाइफ सक्सेस मिल रहा है, हर बात में सक्सेस मिल रहा है, तो सक्सेस की एक स्टेट ऑफ माइंड में बैठ गया वहां पे। अब लाइफ में फेल्यूर्स भी आ रहे हैं। फेल्यूर्स, सक्सेस में इतना खुशी मिली, फेल्यूर में इतना दुख क्यों? फेल्यूर को भी एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि जीवन में सबसे ज्यादा हम कहां सीखे हैं, फेल्यूर्स में या सक्सेस में? अच्छा, हमें कौन सा व्यक्ति कैसा है उसकी यथार्थ परिचय हमें कब मिला? कौन मित्र है, कौन मित्र जैसा व्यवहार कर रहा है ना? फेल्यूर्स में मिला है ना? हमारा वैल्यू क्या है वो हमें कब मिला? मुसीबत के समय। जॉब गया तो वैल्यू मालूम पड़ा, हर चीज का वैल्यू मालूम पड़ा। मुसीबत के समय, सिचुएशंस के समय, फेल्यूर के समय। अब बताइए, हम कब अपने आप को आत्मशोधन कब किए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कब किए? सक्सेस में किए या फेल्यूर में? किस कारण से मुझे सक्सेस मिला, ये कभी सोचा किसी ने? मगर फेल्यूर के समय क्या सोचा? क्यों फेल्यूर मिला? व्यक्ति इंटेलेक्चुअली समझ से आगे बढ़ रहा है ना। अब एडवांटेज फेल्यूर में है या सक्सेस में है? अब ये कुछ नहीं कह रहे, आवाज जोर से दे। फेल्यूर्स में एडवांटेज है ना, उसे क्यों रिजेक्ट करना? हर बार सक्सेसफुल होना जरूरी नहीं है, मगर हर बार कुछ सीखना जरूरी है, ग्रो होना जरूरी है। अब ये अप्स में लाइफ का ग्राफ ऊपर चला गया, ब्यूटीफुल, व्यक्ति ऊपर गया, मगर लाइफ के सिचुएशंस नीचे आ रहे हैं, मगर व्यक्ति मानसिक रूप से यहां पर बैठा, यहां से नीचे नहीं आ रहा है।
तब ये फंक्शनल है या डिसफंक्शनल है? डिसफंक्शनल हो जाता है ना. ओके. और लाइफ के सिचुएशंस नीचे आ गए हैं तो व्यक्ति मन से भी थोड़ा सा उदास हो गया, नीचे आ गया है. ठीक है, सिचुएशन है. उसके बाद थोड़ा समय के बाद फिर लाइफ के सिचुएशंस ऊपर जा रहे हैं, मगर व्यक्ति यहां पर ही स्ट्रकअप हो गया है. डिप्रेशन है. ये लोज है, अप्स, हाइज एंड लोज ऑफ लाइफ. हर दिन में आपको हाइज एंड लोज मिलेंगे. गीता कहती है शीतोष्ण सुख दुखेशु मानव मानेशु. माना शीतल में और उष्ण में, सुख में और दुख में, मान में अपमान में आप एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाओ. ओवर इंटेलिजेंस मत करो, एक बैलेंस्ड अप्रोच. तब आप स्थित प्रज्ञ रह सकोगे. माना यू विल बी एबल टू हैंडल थिंग्स इन अ बेटर वे. गीताचार्य ने कहा कि आप जब हाई जा रहा है, बहुत हाई में नहीं रहो, यहां बीच में रह जाओ. बहुत लो जा रहा है तो लो में मत चले जाओ, मेंटली यहां पर रह जाओ. माना एक नया ग्राफ क्रिएट कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन नहीं. ये नया ग्राफ क्या है? ऊपर बल जा रहा है मगर माइंड यहां तक ही रखे, और नीचे बल आ रहा है तो माइंड यहां तक ही रखे, ताकि इसकी जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी के फ्लक्चुएशन एलिमेंट को हम कम कर सके. एक मानसिकता है, ये आपके मेंटल स्पेस में क्रिएट करने वाला एक पर्सपेक्टिव है, एक बिलीफ सिस्टम जो डेवलप करते हैं. ऐसे नए नए बिलीफ सिस्टम्स जो हमारे लाइफ को प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में ले जा सके. फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप्स है. रिलेशनशिप्स में सबसे इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट एलिमेंट क्या होता है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है, राइट? और स्ट्रॉन्ग डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस. ओके, हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं? शाउट, एंगर. ये कंडीशनड अप्रोच है, ये हमारा नहीं है, क्योंकि बचपन से ऐसे ही देखा है. ये अपना नहीं है. हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं मगर वी एंड अप डूइंग इट लाइक दैट, क्योंकि वी आर कंडीशन. एक स्ट्रॉन्ग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को, आज क्या बहुत अच्छे लग रहे हो आप, आपका फेवरेट डिश बनाते हुए हम बैठ के खाते हुए कॉफी पे बैठ के, व्हाट यू आर सेइंग आई एम नॉट लाइकिंग इट ऑल. एक स्माइल के साथ, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप जो बोल रहे हैं वो ठीक है, मगर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ना, मैं तो ये तो हरगिज नहीं करूंगा. नहीं, बहुत प्यार से बोल रहे हैं ना, ये मुझे सूट नहीं कर रहा है, मेरा कुछ और पर्सपेक्टिव है. देखिए, हर इमोशन के पीछे एक स्टेटमेंट है. वो मेंटल स्पेस की जो एलिमेंट्स है, if you don't want to express anything, you have a choice to say I'm sorry, no comments, I'm not comfortable. Agree, disagree is a part of life. Conflict, we don't need a conflict. Difference of opinions will exist. Difference of opinions, एक चीज हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है. Difference of opinions is not between people. Difference of opinion is related to issues, not to people. Difference of opinions in an issue, but it is not difference between you and me. वो अलग है, ये अलग है. ऐसे छोटे छोटे पर्सपेक्टिव्स जो पावरफुली इंपैक्ट करने वाले पावरफुल एलिमेंट्स है, उन सबको हम मेंटल स्पेस में लाना शुरू करें तो क्या हो जाएगा? Assume this is our mental space. ये मेंटल स्पेस में कई एलिमेंट्स, फैमिली, फाइनेंसेस, जॉब सेटिस्फैक्शन, ओके, एंटरटेनमेंट, हॉबीज एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज,
स्पिरिचुअलिटी मैं अक्सर करके एक चीज़ व्हेन आई आस्क पीपल, इनको मेंशन करने के लिए बोलता हूँ, सारे भर देते हैं, एक चीज़ को भूल जाते हैं। वो कौन सा है? एक चीज़ को भूल जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी भी कुछ लोग ला लेते हैं, और सेल्फ को भूल जाते हैं। हम अभी थोड़े देर पहले डिस्कस किया ना, क्या किसी ने कहा सेल्फ बोल के? लीस्ट प्रायोरिटी है। लोग कहते हैं पीपल हैव बिकम वेरी सेल्फिश। आई अंडरस्टैंड दैट दे आर नॉट सेल्फिश एट ऑल, क्योंकि उनके लाइफ में सेल्फ ही नहीं है। कोई बहुत धन कमा रहा है, पैसों के पीछे भाग रहा है, खाना भी नहीं खा रहा है, और वो धन से एंजॉय भी नहीं कर रहा है, नींद को भी छोड़ रहा है, सुख को भी छोड़ रहा है, औरों के लिए काम कर रहा है। वहां सेल्फ कहां है? बुद्ध एकांत में जाके बैठ गया है जंगल में, सच्चा, इसीलिए तो सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। यहां पर सेल्फ रियलाइजेशन का स्कोप नहीं है, रनिंग है। सेल्फ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जीवन में। औरों की पसंदगी से, औरों के ओपिनियन के लिए, औरों की अप्रूवल के लिए ही भाग रहा है मन। नहीं, आपका अप्रूवल क्या है? आपका मन क्या कह रहा है आपसे? वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये सारे एलिमेंट्स को हम जोड़ते हैं। ये सारे कई एलिमेंट्स है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट राइटिंग, ये सारे हमने डिस्कस कर दिया, राइट? इनमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमें ड्रेन कर रही है। कुछ हैबिट्स होंगे, या कुछ पर्सपेक्टिव्स होंगे, कुछ बिलीफ सिस्टम्स होंगे। उसको क्या करना चाहिए? मेंटल स्पेस से बाहर निकालना है इसे। कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो मेंटल स्पेस के बाहर है, मगर इनकी महत्व बहुत ज्यादा है जीवन में। उनको क्या करना चाहिए? अंदर ले आना चाहिए। मे बी मेडिटेशन है, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है, सोशल वर्क है, या पढ़ाई। व्यक्ति कहाँ तक पढ़ा है? कहीं ना कहीं ये भी एक कंडीशनिंग है ना। 20 ईयर्स 23 ईयर्स वहाँ तक ही है ना पढ़ाई। उसके बाद क्यों नहीं पढ़ रहे? वाई शुड नॉट बी? एज के रिलेटेड है पढ़ाई। एक्सटेंडेड एजुकेशन क्यों नहीं हो पा रही है? वाई इज एजुकेशन कन्फाइंड टू वन पर्टिकुलर एज? वाई इज इट शुड बी कन्फाइंड टू ओनली वन थिंग? अच्छा, जॉब, मे बी सर्वाइवल के लिए जॉब लिया, मगर उसमें कोई एंटरटेनमेंट या इंटरेस्ट नहीं है। इज इट वर्थ डूइंग? हाँ, सर्वाइवल के लिए चाहिए, मगर इंटरेस्ट के लिए, हैप्पीनेस के लिए, वी नीड टू री एक्सप्लोर दोज एवेन्यूज एज वेल। इसको करते हुए एक नया चीज भी, एक न्यू वाटर शुड फ्लो इनटू लाइफ। एक बहती हुई नदी में, एक सरोवर में बहुत फर्क है। इसीलिए न्यू थिंग्स शुड ऑल्सो गेट एडेड इनटू लाइफ, राइट? न्यू स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, न्यू लर्निंग्स एंड न्यू पर्सपेक्टिव्स एक्सप्लोर करना, हॉबीज, इंटरेस्ट। कहां चले गए ये सर? पहले तो बहुत खेलते थे, अब खेल क्यों नहीं हो रहा है जीवन में? रिस्पॉन्सिबिलिटी माना टाइम 24 आवर्स है, एलोकेशन में कुछ गड़बड़ है, राइट? अभी इस मेंटल स्पेस में हम विल क्रिएट वन मोर स्पेस कॉल्ड एज सेंट्रल स्पेस, राइट? इस सेंट्रल स्पेस में हम क्या रखेंगे? सेल्फ को रखेंगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखेंगे, और
और क्या रखेंगे सेंट्रल स्पेस? हाँ, आप कुछ बोल रहे हैं, बोलो। नहीं, क्या रखेंगे? और हैप्पीनेस, पीस, प्योरिटी, एम्प्टी, वेरी गुड। हाँ, अभी हम एक बार देखते हैं कमांड एंड कंट्रोल। ओके, आप मिलिट्री से है क्या? ये भी कंडीशनिंग है। रिटायर हो जाते हैं मगर टायर नहीं होते। चलेगा, बिल्कुल। एक होता है कंट्रोल, दूसरा होता है चैनलिंग। नहीं, एक नेवल शिप में गए थे हम, तो एक बहुत कई ब्यूटीफुल चीज़ों को समझ में आया। उन्होंने कहा, एक शिप में जब हम अंदर जा रहे थे, INS का एक शिप था, वहाँ के कैप्टन ने बताया, बहुत अच्छी बात, आई ट्राई टू रिलेट इट विथ लाइफ। उन्होंने कहा, एक शिप में आप कहाँ पर हो वो जानना बहुत जरूरी है। यू नीड टू नो वेयर यू आर, वो बहुत जरूरी है। और आप कहाँ पर हो वो जानने का एक तरीका है, आपको 3 क्वाड्रेंट्स की जरूरत है। आप एक क्वाड्रेंट से आप अपने आप को पोजीशन लोकेट नहीं कर पाओगे। आपको 2-3 डिफरेंट पॉइंट्स चाहिए जिसके आधार पर आप कहां पर हो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब इसको लाइफ में देखिए, कभी कभी मुझे लगता है तो गुरु तो सर्वत्र हमारे लिए कुछ ना कुछ ज्ञान का भंडार रखा हुआ है। इट्स ए ट्रेजर हंट लाइक। हम उससे गुजर रहे हैं मगर दिख नहीं रहा है। हर चीज को उस तरह से देखेंगे तो लाइफ इज ए ब्यूटीफुल प्रोसेस एंड बहुत बहुत रिलैक्सिंग और बहुत सूदिंग है। पेन इज ए मैसेज, इट्स ए वेरी पावरफुल मैसेज, एंड पेन इज मैंडेटरी एंड सफरिंग इज ऑप्शनल। सफर होना जरूरी नहीं है पेन से। जीवन में प्रॉब्लम्स आर मैंडेटरी, सफरिंग विद द प्रॉब्लम्स इज नॉट मैंडेटरी। फॉर एग्जाम्पल, पेन भी बहुत सुख दे सकता है। कब? हम सबकी माता जी, मदर्स, जब हमें पैदा कर रहे थे कितना पेन था, मृत्यु से भी ज्यादा पेन था, मगर क्या उस पेन में वो सफर कर रहे थे? वो पेन कितना सुखद था। इतना पेन में भी कितना अंदर के मन में कितना सुख की महसूस था थी। आई एम ब्रिंगिंग ए वंडरफुल पर्सन इनटू दिस वर्ल्ड। जब वो शिशु बाहर आ जाता है, वो रो लेता है, तो मां इतना पेन में भी कितना सुख की महसूस था की है हमारी मां। पेन इज मैंडेटरी, सफरिंग इज ऑप्शनल। प्रॉब्लम्स आर मैंडेटरी, सफरिंग इज ऑप्शनल। सिचुएशंस आर मैंडेटरी, नेविगेशन इज ऑप्शनल। राइट? हाँ, ये हमारा सेंट्रल स्पेस है। हम सेंट्रल स्पेस में भी कितने बातें आ गई है, ये सारा यहाँ रख दिए तो ये भी ऐसा ही हो रहा है कि माइंड में ऐसा ऐसे ये थॉट, यहाँ से वहाँ से यहाँ, ये सब ऐसा हो रहा है। माइंड इज बिकमिंग लाइक दिस। नहीं, ये नहीं चलेगा। कुछ ऐसे चीजें हैं लाइफ में जो एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं और ट्रबल कर रहे हैं, उसको बाहर भी तो निकाल सकते हैं ना। आइडेंटिफाई करना होगा मेंटल स्पेस में ऐसे कौन से चीज है जो हमें डिस्टर्ब कर रही है, उसे कैसे बाहर निकाले। खुद नहीं निकाल पाते, किसी का हेल्प लेना ही है। ओके, क्योंकि मिरर में आप सिर्फ आगे का देख सकते हो, पीछे का नहीं देख सकते हो। किसी का हेल्प चाहिए पीछे के लिए। अगर किसी से भी, मित्रों से भी नहीं बोल रहा तो यू नीड टू टेक ए प्रोफेशनल हेल्प, बट यू नीड टू कम आउट ऑफ इट। डोंट लिव विथ इट फॉर एवर। कोई भी इमोशन के साथ वी नीड नॉट लिव फॉर एवर। 10 साल पहले जिंदगी भर याद रखूंगा, प्रोग्रामिंग हो रहा है। माइंड कैसे सोचता है कि वो समझ जाता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये इतना इम्पोर्टेंट है। अगर मेरा स्वामी ये कह रहा है कि इसे जिंदगी भर याद रखना है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है। उसको हीरे जैसे संभाल के रखेगी। सबकॉन्शियस माइंड इसको इतना इंपॉर्टेंस देगी कि आप सुबह नींद से उठते ही आपको याद दिला देगी, जिंदगी भर याद रखनी है। ऐसे अगर 10 चॉइसेस है, जहां 10 स्टेटमेंट्स है जहां पर हमने ये कहा, तो बस है वो दिन को खराब करने के लिए। याद दिला देगी ना, यू सेड इट, यू प्रोग्राम्ड इट दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिंदगी भर याद रखना है। हर दिन वो याद दिलाएगी कि आप याद रखो, याद रखो, याद रखो। हम उसको रीडिफाइन करेंगे। कई बार जिंदगी में कई व्यक्तियों को क्षमा करना उनके लिए नहीं है। इट्स नॉट वर्थ कैरिंग दैट बैगेज। ओके, उसको हमें छोड़ना है। वो बैगेज है, क्षमा कर दे। फॉरगेट भी करना, फॉरगिव भी करना, फिर फॉरगेट करना, इग्नोर। ओके, लेट गो। कई चीजों को लेट गो करना है। अब वो पेन है, वो सफरिंग है, इट्स नॉट वर्थ, इंटरफियर कर रहा है हर चीज में। ये हमारा सेंट्रल स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है सारे दिन में। ये वीक के लिए एक छोटा सा मैं एक्टिविटी दे दूं, कैन यू वर्क ऑन इट? अब सारे दिन में एक 3-4 टाइम्स सडनली आप बैठ जाइए और अपने पास अपने साथ कहिए, व्हाट इज देयर इन माई सेंट्रल स्पेस। अब इस मोमेंट में मेरे सेंट्रल स्पेस में क्या चल रहा है देखिए। करेक्ट मत कीजिए, सिर्फ देखिए क्या हो जाएगा। देखो, दिस इज माइंडफुल ऑब्जर्वेशन। मेडिटेशन में माइंडफुल ऑब्जर्वेशन एक बहुत पावरफुल टेक्निक है। आप माइंडफुली उसको ऑब्जर्व करते रहेंगे, वो डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। करेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने ये सेंट्रल स्पेस को ओपन रखें, फ्री रखें। जब जरूरत पड़े तब यूज करें, यूज होने के बाद उसको फ्री करें। फॉर एग्जाम्पल, ये वर्क है, ये फैमिली है। मॉर्निंग फैमिली में म्यूचुअली हेल्प रश वाला टाइम होता है ना, सुबह सुबह का कितना ओके, जो कंट्रीब्यूट करना है कि ये जो भी हुआ है, कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, कुछ इमोशंस है, कुछ फीलिंग्स है, डिस्टर्बेंसेस है, सारा मिक्सचर है, हो गया। हम सेंट्रल स्पेस में क्या है उस समय, मॉर्निंग के टाइम पे फैमिली है, राइट? वहां से हम ट्रांजिशन ले रहे हैं, कहां पर जा रहे हैं? वर्क के लिए। अब वर्क फ्रॉम होम वालों को बाद में बात करेंगे अभी अब यार ट्रांजिशन कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? वर्क। तो सेंट्रल स्पेस से फैमिली की जो थॉट्स है, 1 मिनट ठहरिए। यू आर रेडी, योर शूज आर रेडी, योर लैपटॉप इज रेडी, योर एवरीथिंग इज रेडी। आप निकल ही रहे हो, 1 मिनट बैठ जाइए, 1 मिनट। सेंट्रल स्पेस से ये सारे जितने भी थॉट्स है ऑब्जर्व कीजिए। कई पेंडिंग थॉट्स होंगे, कई लिस्ट होंगे जो पूरा नहीं हुए हैं, वो सारा माइंड में लिस्ट आउट कर दीजिए और गूगल डॉक में उसको रख दीजिए या कीप में नोट डाउन कर दीजिए। गूगल कीप में आप अपना सारा जो भी नोट डाउन करना है, एक पेपर पेन लीजिए, उसमें नोट डाउन कीजिए और उसको फोल्ड कीजिए और कहिए, आई विल ओपन दिस इन द इवनिंग। मेंटल स्पेस से इसे एम्प्टी कर दिए हैं, यू सेंड इट बैक इनटू दिस। ये हो गया है। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है इसमें? वर्क आ रहा है। ये सेपरेट किए हैं। ये हमें मेंटल लेवल पर, फीलिंग्स लेवल पर, इमोशन लेवल पर, डिसीजंस लेवल पर प्रैक्टिस करने के प्रयास करना चाहिए। तब क्या हो जाएगा, इसमें कई प्रकार की डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, हैप्पीनेसेस हो सकते हैं। वी आर नॉट अफेक्टिंग दैट ऑन आवर मूड, वी आर नॉट कैरिंग इट अलॉन्ग विद अस। हम उसको वहां रखते हैं, फिर वर्क को यहां अंदर ले आ रहे हैं। वर्क के टाइम पर, जॉब के टाइम पर, वॉट एवर यू आर डूइंग, उसमें हो सकता है आपका बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कुछ डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं या कुछ और कैलामिटीज है लाइफ में।
उसे पार्क यहां पर रखिए, उसे जहां रखना है वो एरिया पे रखिए। अप्रोप्रिएट टाइम पर इसको यहां बीच बीच में मन आपको याद दिलाता रहेगा कि ये भी है वो भी है। आप अपने मन से कह दीजिए ये इंपॉर्टेंट है तुम जो कह रहे हो, मैंने नोट डाउन कर दिया हूं इसको और इसको जरूर एड्रेस करूंगा। अभी सेंट्रल स्पेस में कुछ और एड्रेस कर रहा हूं। बहुत जेंटली, बहुत प्यार से, बहुत रेस्पेक्ट से खुद के माइंड को ऑर्गेनाइज करना है। हर चीज को मिक्स करके खिचड़ी नहीं बनाना है। पेट में जाने के बाद तो पनीर भी जाएगा, रोटी भी जाएगी, सब जाके मिक्स हो जाएंगे ना। तो एक बार ग्राइंड करके खा ले तो खत्म हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कर रहे ना, हर एक को प्रॉपरली कर रहे हैं। इसी प्रकार से मेंटल थॉट्स को, हमारे मेमोरीज को, द चॉइस ऑफ मेमोरीज, जीवन में कई चीज हुए हैं, अच्छे भी हुए हैं, बुरे भी हुए हैं, मगर हमारे क्वालिटी ऑफ मेमोरीज कैसा है? ज्यादातर कौन सी चीजें याद आ रही है? क्यों? वाई? ये मेंटल स्पेस से एम्प्टी करने की बातों को मेंटल स्पेस में भर रहे हैं। इसके लिए एक छोटा सा एक्टिविटी है, करेंगे आप सब? एक छोटा सा एक्टिविटी है, आप एक बुक बनाइए अपना, ओके? उसका नाम मेंटल स्पेस दे दीजिए। बचपन से लेकर के अभी तक कई अच्छी घटनाएं भी घटी होगी ना, बहुत सक्सेसफुल चीजें भी हुई होंगी, बहुत हैप्पी ओकेजन्स होंगे, बहुत सक्सेसफुल एंड अपने आप से बहुत तृप्ति मिलने वाली एक्टिविटीज भी होंगे। किसी को मदद किए होंगे, त्याग किए होंगे, छोटे छोटे भी। एक छोटा सा बच्चा अपना फूड किसी को देता है, वो समय के लिए वो बहुत बड़ा त्याग है। किसी को हेल्प किया, और पहली बार आप साइकिल बैलेंस करना सीख लिए। आज के दिन तो वो कुछ भी नहीं है, मगर वो दिन कितना बड़ा था वो। याद कीजिए कितने इंजुरीज थे। जिस दिन आपको बैलेंस आ गया, उस दिन क्या हुआ? आपको ऐसा लगा कि आपने दुनिया को जीत लिया। आप रात दिन घर में बुला रहे हैं, आपको टाइम ही मालूम नहीं पड़ रहा, पूरा लोकेलिटी घूमते जा रहे हैं। क्यों? दैट्स ए बिग अचीवमेंट एट दैट टाइम। कितना खुशी था उसमें। भोजन भी नहीं चाहिए हमको, कोई बुला रहे नहीं, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर दिस। हवा में उड़ रहे हैं जैसा फीलिंग आता है ना। ऐसे छोटे छोटे, फर्स्ट टाइम जब किसी को हेल्प किया, फर्स्ट टाइम किसी को कुछ सिखाया, वो कैसा था? ऐसे सारे मेमोरीज, रिमोटेस्ट मेमोरीज के साथ जाके एक एक मेमोरी को आप रिवाइज कीजिए। कम से कम महीने में एक घटना तो अच्छी होगी ना, एक घटना तो विशेष होगा ना, बहुत अच्छा तृप्ति देने वाला। अगर किसी का एज 25 ईयर्स है समझिए, महीने को अगर एक घटना भी मिल रहा है, वरना साल में 12, एंड 25 इंटू 12 कितना रहा? 300। 25 ईयर्स में 300 में, चलो फर्स्ट 5 ईयर्स निकाल दीजिए, तो एटलीस्ट 250 240 मेमोरीज तो है ना। कितने लिखेंगे बताइए? हर एक अपना नंबर बताइए। आपको वो मेमोरीज को याद करना होगा और लिखना होगा। हर मेमोरी को एक 5-6 लाइंस में लिखिए, थोड़ा टाइम दीजिए। आप सुनने के लिए आ रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, कुछ करना भी चाहिए। ये सारे मेमोरीज को आप लिखिए। अराउंड एक लक्ष्य रखते हैं, 100 मेमोरीज, सारे एक 100 मेमोरीज आप लिस्ट आउट कर दीजिए। माला 108 की होती है, चलो 108 की कर लेते हैं। इसका नाम रखते हैं स्वगुण माला। ओके, क्या नाम है इसका? स्वगुण माला। कैसे करेंगे इसको? आपका एक एक मेमोरी को डिफाइन कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए, और अपने आप को एक क्वेश्चन कीजिए कि ऐसा कौन सा मेरे में क्वालिटी था, गुण था, जिसके कारण वहां पर मैं सक्सेसफुल हुआ हूं। मे बी डिटर्मिनेशन, मे बी हेल्पिंग नेचर, मे बी कमिटमेंट। ऐसे कई गुण आपको दिखने में आना शुरू हो जाएगा।
एक एक मेमोरी को सारा 100 मेमोरीज 108 मेमोरीज लिखिए। 108 मेमोरीज के बाद एक एक मेमोरी में ऐसा कौन सा गुण था जो कंट्रीब्यूट किया है वो सक्सेस के लिए, वो गुणों को आइडेंटिफाई कीजिए। नाउ डेली, ओके, सुबह उठते ही मन जो याद दिला देगा कौन से जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, उसको हम रिप्लेस करेंगे ये मेमोरीज के साथ। उठते ही हम ये 10 पढ़ेंगे, इसमें 10-15, और ये स्वगुण माला की जो कितने भी 108 क्वालिटीज अपने लिखो वो सारे क्वालिटीज पढ़ लीजिए। एक होता है मेमोरी, मेमोरी से क्वालिटी या पावर या गुण उसको आइडेंटिफाई करें, उसको रिमाइंड करेंगे। ये चीजों को हम हमारे इनर स्पेस में ले आएंगे। मेंटल स्पेस में भी, इनर स्पेस में ये चीजों को रखेंगे। एक लक्ष्य होना रखे कि कोई भी एनर्जी को ड्रेन करने वाली चीज को ये इनर स्पेस में नहीं आने देंगे, भल मेंटल स्पेस में है अभी। कौन प्रायोरिटाइज कर सकता है? सेल्फ ही करना है। जिसको खुद से प्यार है वो ये कर पाएगा। सिर्फ कुछ के लिए सिंपैथी चाहिए वो नहीं कर पाएगा, कि सॉल्यूशन हमारे हाथ में है। जस्ट वी नीड टू रीऑर्गेनाइज थिंग्स। कुछ एक बॉक्स, डिलीट बॉक्स बोल के एक बना दीजिए, जिसमें सारा कचरा इसमें डाल दीजिए, सारा बॉक्स बाहर निकाल दीजिए कभी एक बार। उसको यू कांट फॉरगेट एनीथिंग, यू कैन जस्ट रिप्लेस। हमारे मेमोरी में एक बहुत आश्चर्य की बात है, बचपन से जब से आपने आंख खोली तब से अभी तक की हर मेमोरी रिकॉर्डेड है। ये कभी डिलीट नहीं होता है। उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, उसके पर्सपेक्टिव बदल सकते हैं, उसके बिलीफ सिस्टम से इमोशन को चेंज कर सकते हैं, उसे हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेमोरी को चेंज नहीं कर सकते। ऐसे हमारे मेंटल स्पेस में थॉट्स को रीऑर्गेनाइज करते हुए, हर चीज को एक एक कैटेगरीज में रखते हुए, हर थॉट को हर बार बीच में नहीं आने देते हुए, जब वो आ भी जा रहे हैं ना, हम ये कहते हैं कि ये वहाँ उसके बाद हम डील करेंगे, अभी मेंटल सेंट्रल स्पेस में ये है। इस प्रकार से अगर हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो कैसा होगा? कैन वी ट्राई दिस? है ना, ट्राई कर सकते हैं ना। दिस इज ए प्रोसेस विच कैन ईजिली हेल्प अस टू रियलाइज। थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, राइट? इसके लिए क्या करेंगे आप? इमीडिएटली एक बुक रखेंगे। कौन सा बुक है वो? इसका नाम क्या रख रहे हैं? माई मेंटल स्पेस। उसमें सारे चीजों को रखें। फॉर एग्जाम्पल, ओवर थिंकिंग किसी को खत्म करना है, बार बार मन में जो फास्ट थॉट्स है उसको खत्म करना है। आप बैठिए मन के साथ, तुम्हारे क्या क्या प्रॉब्लम्स है बताओ, सारा लिखिए। 10, 20, 30, 40, 50 सारे आ गए ना। अभी आई विल अटेंड टू देम, मैं एड्रेस करूंगा इन चीजों को। अभी आप सोचना बंद कर दो, मन को कह सकते हैं। फिर मन याद दिलाई देगी, फिर सडनली वो याद आएगा। आप कहो पॉइंट नंबर 26 में ये आ गया है, कुछ और नया है तो बताओ। फिर मन क्या होगा? थोड़ा देर के लिए साइलेंट हो। फिर और एक बात याद आएगी, 22 पे पॉइंट में ये आ गया है, फिर याद दिलाएगी 3 में आ गया, कुछ है नया ऐड करूं, कुछ है बताओ। मन से पूछते हैं। अब मन क्या करेगी एक बार के बाद? अरे ये तो सारा लिख दिया है, अभी मुझे याद करने की जरूरत नहीं है। माइंड फ्री होना शुरू, मेंटल स्पेस क्लीन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सारा आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आप अवॉइड नहीं कर रहे हो, एस्केप नहीं कर रहे हो, एड्रेस कर रहे हो। एड्रेस कर रहे हो तो मन शांत हो जाएगा, तब मेडिटेशन में बैठ सकेंगे। नहीं तो मेडिटेशन में बैठेंगे या सारा घूमता रहेगा, और अच्छे तरह से घूमेगा। कंसंट्रेशन बढ़ जाती है ना मेडिटेशन में, मगर वो कंसंट्रेशन पूरे वहां यूज हो रहा है। एम्प्टी करें। इस प्रकार से एक छोटा सा मेंटल रीऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस से मेंटल स्पेस को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करें तो हमारा लाइफ का स्पेस भी अच्छा बन सकता है। ओके, ये खाली होगा तब तो भगवान को वहां बिठा सकेंगे। कचरे में भगवान को कैसे बिठा सकते हैं? ये शुद्ध बनेंगे तो वहां परमात्मा को बिठा सकेंगे। उनके साथ हमारा प्यार से कॉन्वर्सेशन होगा। जीवन में भगवान भी, परमात्मा भी एक भाग बन जाएगा।
मेंटल स्पेस को अच्छी तरह से हम रीऑर्गेनाइज करने की प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। सो 2 मिनट मेडिटेशन के लिए, हाँ जी 2 मिनट मेडिटेट करें, ये मेंटल स्पेस का एफर्मेशंस ले। राइट, वेरी गुड। हम अपने मन की ओर ध्यान दें। मन में जो कई प्रकार के विचार चल रहे हैं, उन सब विचारों को बहुत प्यार से हम समझने की कोशिश करें। बहुत स्नेह से, प्यार से अपने मन को और मन के विचारों को हम स्वीकारते हुए हमारे मेंटल स्पेस को बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करने की संकल्प ले। जीवन में हर चीज का महत्व है। कोई एक चीज को हम सर्वस्व नहीं बनाए। हर चीज का महत्व को समझते हुए अपने जीवन में, अपने मन में उनके लिए उचित स्थान दें। जो भी अयोग्य विषय हमारे मन की स्पेस में ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको बहुत प्यार से विदाई दे। जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो अभी अपने मन में, अपने जीवन में अपना स्थान नहीं बनाया, उसका दिल से स्वागत कीजिए। अपनी मेंटल स्पेस को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करते हुए हमारे हर सोच, हर विचार को एक समुचित स्थान देते हुए मन को स्थिर और एकाग्र बनाए। हमारे सेंट्रल स्पेस में जब भी कोई कार्य की जरूरत है, उस कार्य की विषय को हम वो सेंट्रल स्पेस में लाए। वो कार्य पूरा करते ही उसको हम फ्री कर दें। इतना स्वच्छ और शुद्ध करें कि हम परमात्मा को उस मन के सेंट्रल स्पेस में बिठा सके। हमारे हृदय, हमारे विचार, हमारे भावनाएं बहुत शुद्ध और पवित्र है। हमारा स्वधर्म बहुत शुद्ध है। जीवन की इस भाव में बहते बहते अपने आप को नहीं खोना है। अपने जीवन की अतीत में घटी हुई सब श्रेष्ठ घटनाओं को और अच्छी अच्छी मेमोरीज को हम याद करें और हर मेमोरी को हम लिखें। अपने अंदर परमात्मा किन गुण और शक्तियों को भर के हमें इस दुनिया में भेजे हैं, उन्हें पहचाने,
और उसे कार्य में ले आए। दिल से, बहुत तृप्ति से, सेटिस्फैक्शन से हम शुक्रिया अदा करें खुद को, जीवन को, प्रकृति को, सर्व संबंधों को और परमात्मा को। एक बहुत ही सकारात्मक संकल्प से, विचार से खुद के ऊपर अपार प्यार और रेस्पेक्ट से हम अपने जीवन को भरपूर करें। रोज थोड़ा समय हर दिन परमात्मा के संग में अपने इन विचारों को और दृढ़ करें, मन को योगस्थ बनाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।